দিল্লি থেকে ত্রিপুরা ফিরে এসেই আমরণ অনশন কর্মসূচি জারি রাখার ঘোষণা ত্রিপুরা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য দেববর্মনের। ত্রিপুরার উপজাতি মানুষদের সাংবিধানিক দাবি আদায়ে 28 ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা দলের ঘোষিত আমরণ অনশন কর্মসূচি জারি থাকবে। দিল্লি থেকে ত্রিপুরা ফিরে এসে এমনটাই জানালেন ত্রিপুরা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য দেববর্মন। তিনি জানান, এই অনশন কর্মসূচিতে থাকবে না কোনো দলীয় পতাকা। এমনকি যারা এই কর্মসূচিতে অংশ নেবেন তারা কোনো নেতা হিসাবে নয়, তারা আসবেন একজন সাধারণ জনজাতি হিসাবে। জানা গেছে ত্রিপুরা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য দেববর্মন যখন আমরণ অনশনের ঘোষণা দিয়েছেন, ঠিক তারপর মুহূর্তেই দিল্লির বিজেপি নেতৃত্ব তাকে দিল্লি ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনিও দিল্লির বিজেপি নেতৃত্বের ডাক পেয়ে তড়িঘড়ি দিল্লি ছুটে যান। বিজেপি নেতৃত্বরা তার কাছে এই ধরনের আমরণ অনশন কর্মসূচির বিষয়বস্তু জানতে চাইলে তিনি তখন তার সাংবিধানিক দাবি আদায়ের কথা দিল্লির বিজেপি নেতৃত্বদের সাথে তুলে ধরেন। তখন বিজেপি নেতৃত্বরা ত্রিপুরা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য দেববর্মনকে এই ধরনের কর্মসূচি প্রত্যাহারের কথা বলেন। প্রয়োজনে ত্রিপুরা দলের নেতৃবৃন্দের সাথে আরও কয়েক দফা আলোচনা করে তাদের দাবি দাওয়াগুলি নিয়ে একটা সমাধানের রাস্তা বের করা হবে বলে দিল্লির বিজেপি নেতৃত্বরা প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য দেববর্মনকে জানিয়েছেন। তবে কবে নাগাদ আলোচনা হবে তার কোনো চূড়ান্ত দিনক্ষণ প্রদ্যোৎকে জানানো হয়নি। তাই অভিমানে তিনি দিল্লি থেকে ত্রিপুরা ফিরে এসেই 28 ফেব্রুয়ারি আমরণ অনশন কর্মসূচি জারি রাখার ঘোষণা করেছেন। ত্রিপুরা থেকে বিক্রম কর্মকারের রিপোর্ট, এক্সটিভি बांग्ला। शिवाय खुलुंखा, हमारा जो अनशन होगा, हंगर स्ट्राइक होगा अनटू डेथ हाथाई कतौर में, मैं चाहता हूं कि उस दिन त्रिपुरा माथा का फ्लैग नहीं होना चाहिए, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का फ्लैग नहीं होना चाहिए, उसमें सिर्फ त्रिपुरा का थानसा होना चाहिए। आप लोग सब अब इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का फ्लैग नहीं होगा, सिर्फ त्रिपुरा का इमोशन होगा और त्रिपुरा का थानसा होगा। ये मेरा मैसेज सबको है, अपने वॉरियर्स को। आप त्रिपुरा बन के आइए, पॉलिटिशियन और वर्कर्स बन के नहीं आइए, त्रिपुरा बन के आइए। ये फाइट त्रिपुरा का है, एक पार्टी का नहीं है। और जब तक हमको जस्टिस नहीं मिलता है, मैं वहां में हंगर स्ट्राइक करूंगा, कुछ हो या ना हो। बेलाई ना हम भाई माई पॉइंट, मेरा पॉइंट एक ही है, राइटिंग में मुझे चाहिए, वर्बल अश्योरेंस से नहीं काम चलेगा। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। 1 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं और अगर हमें ये राइटिंग में अश्योरेंस नहीं मिलता है तो बहुत अनफॉर्चुनेट होगा और मैं हाथाई कतौर में 5 टू डेथ मैं परसों से शुरू कर दूँगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे कहा है कि वो लोग सोच रहे हैं, लेकिन जब तक मुझे राइटिंग में नहीं मिलता है मैं अपने लोगों को गुमराह करके झूठ नहीं बोल सकता हूँ। अगर राइटिंग में मिलेगा तो मैं लोगों को दिखाऊंगा, अगर राइटिंग में नहीं मिलेगा तो मैं अपने लोगों को अंधेरे में रखकर राजनीति नहीं कर सकता। और अगर जाना है तो जाऊंगा, लेकिन बुबागरा बन के, त्रिपुरा बन के और हानि बुसा बन के जाऊंगा। एक डरपोक इंसान बनकर इधर से उधर जाके मैं काम नहीं कर सकता। Sir, all of a sudden you had rushed to Delhi. Who had called you? And Government of India officials had called. It was a government level, not a political. See, I'm only interested if I go tomorrow to London, or I go to Bangladesh, or I go to Singapore, who will issue the passport? The Government of India, not a political party. So I want an assurance from the Government of India, and if the Government of India assures us, then I have no problem. But I will not do anything without anything in writing. That is very clear. बुबागरा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शन के सामने बुबागरा नाटक कर रहा है, क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों को जो ने ऐसा कहा? मैं जानता हूँ कौन बोल रहे हैं, मैं उनके लिए आज रात प्रार्थना करूँगा, आप भी प्रार्थना कीजिए। मैं त्रिपुरा को प्यार करता हूँ, वो लोग त्रिपुरा होके भी अपने बारे सोच रहे हैं। इसी के लिए आज त्रिपुरा का ये परिस्थिति है कि हम लोग में कुछ लीडर्स हैं जो स्वार्थी हैं। मैं सबसे बात कर रहा हूँ, बहुत लोग जो मेरे खिलाफ भी हैं पॉलिटिकली। मैंने विद्युत का स्टेटमेंट देखा, आई वेलकम है। मैंने विकास का स्टेटमेंट देखा, आई वेलकम है। शुक्ला से आज बात हुआ, मैं शुक्ला के घर में जाके आज चाय पीऊँगा, बात करूँगा। मैं त्रिपुरा को इकट्ठा करके अपने नेक्स्ट जनरेशन को कुछ देना चाहता हूँ। ये लोग के दिमाग में क्या है, इनके दिल में क्या है, मुझे मालूम नहीं है।
लेकिन अगर हमने ईश्वर से, गॉड से प्रार्थना किया तो शायद उनको कुछ बुद्धि मिले और उनको समझ में ये बात आए कि मैं अपने पार्टी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने जाति को अधिकार देने के लिए बात कर रहा हूँ, मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को सिक्योर करने के लिए बात कर रहा हूँ। अब अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो मैं क्या करूँ? बाबा अगर आपका तबीयत ठीक नहीं रहता, इस हालत में आपका ये हंगर स्ट्राइक कितना फ्रूटफुल होगा बाबा? तो त्रिपुरा सब लोग डर रहे हैं बाबा। जिंदा रह के भी क्या करूँ? जिंदा रह के भी मैं क्या करूँ? अगर मैं अपने लोगों को कुछ दे नहीं सकता हूँ तो मैं करूँ क्या? तो जो करना है मैं करूँगा। Maharaj, is it that মাঝে পথ দেখালো বাংলা নিজের ক্ষমতা, এই বাংলার মা বোনেরা মাথা তুলে বাঁচছে, নারী শক্তির জয় গানে সবাই এখন হাসছে, মাসে মাসে বাড়লো নিশ্চিত আয়, লক্ষ্মীর ভান্ডার নারীর সহায়, লক্ষ্মীর ভান্ডার নারীর সহায়, 500 টাকা বেড়ে গিয়ে এখন হলো 1000, তপশিলি মা বোনেরা 1200 পাবে এবার, মেয়ে হয়ে জন্ম নিয়ে এই বাংলার বুকে ধন্য হলো এ জীবন, এখন আরো সুখে মাসে মাসে বাড়লো নিশ্চিত আয়, লক্ষ্মীর ভান্ডার নারীর সহায়, লক্ষ্মীর ভান্ডার নারীর সহায়।